Hello everyone, welcome back to yet another session on SSB crack exams. So आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है बिकॉज आज के सेशन में मैं आपको नहीं बताऊंगी कि SSB इंटरव्यू में क्या करना है. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने. I will not tell you what to do in your upcoming SSB interview. मैं आपको ये बोलूंगी कि आपके अपकमिंग SSB इंटरव्यू में क्या नहीं करना है. So let us see what not to do in your upcoming SSB interview. So first of all, आपको झूठ नहीं बोलना है. Do not ever lie in your SSB interview. Since you're going to be an officer, आपको हमेशा सच का साथ देना है. You have to be truthful and honest. When you're expected not to lie, you have to keep that expectation. और उसके लिए why fake it, why telling lies, वही बताओ जो सच है, जो आपने अपनी लाइफ में किया है, जो आप करते हो, जैसे आप इंसान हो. और अगर आपको लगता है कि ये पार्ट गलत है, उनको गलत लगेगा तो झूठ बोल देते हैं. why telling the lie? You need to improve that part which you think is your weakness and try adapting good things. Unless and until you make yourself a positive person, a person that you think is good, कभी भी अगर आप फेक करोगे कहीं पे जाके या लाई करोगे, इट विल नॉट वर्क. The second thing is do not act like a superman or a superwoman. Do not try to show off unnecessarily that you are the best. कि आपसे ऐसा कोई काम है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते. Do not try to dominate in GD. Do not try to be a savior always. Do not climb on every balli and fatta that you come across. Do not, show that, okay, I can do everything. मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है. You have to work in teams. Specifically ये जो काम है, ये जो सुपरमैन या सुपर वुमन की तरह एक्टिंग कैंडिडेट्स ग्रुप टास्क में जाके करते हैं, जहां पे वो ग्रुप को काम नहीं करने देते. दे वांट टू शो टू द GTO दैट सी हाउ केपेबल आई एम. तो यह नहीं करना है क्योंकि ग्रुप टास्क इज ऑल अबाउट डूइंग द टास्क इन ग्रुप. तो आपको ग्रुप का सहायता लेना है, उनकी मदद लेना है, उनका मदद करना है, और आपको ये भी दिखाना है दैट यू आर अ गुड टीम प्लेयर इंस्टेड ऑफ शोइंग दैट आई कैन डू एवरीथिंग इंडिविजुअली. So you have to watch every actions of yours carefully. You have to act in a balanced manner. You always have to be with the group, talk for the group, and you have to always think about the group. Whenever you are speaking, try to speak in a controlled but firm manner. Do not be impolite or rude, and give everybody an equal chance, be it in GD or in PGT or any group tasks, right? The next thing that you should not do is breaking down in your personal interview. Now बहुत बार इंटरव्यूअर कुछ ऐसे तरीके से बात करते हैं आपके साथ या कैंडिडेट्स के साथ इन अ वेरी रूड मैनर या फर्म मैनर. इससे क्या होता है, कैंडिडेट्स ना वो डर जाते हैं. यू शुड नॉट गेट अफ्रेड. ये उनका एक इंटरव्यूइंग टैक्टिक्स है जिसके थ्रू वो आपको स्ट्रेस आउट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि जब आपके साथ कोई ऐसा बात कर रहा हो, कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन में आप हो, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे. प्लीज डू नॉट थिंक दैट दैट पर्सन इज रियली ट्राइंग टू इंसल्ट यू. उनके साथ आपका कोई भी पर्सनल एनमिटी नहीं है. तो अगर आपको कभी ऐसा लगे दैट द इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज टॉकिंग टू इन अ वेरी रूड वे या फिर आपसे कोई इंसल्टिंग बात कर रही है, डू नॉट ब्रेक डाउन, डू नॉट लूज कॉन्फिडेंस. You have to always remind yourself that it is a test. ये एक परीक्षा चल रही है और मुझे इस परीक्षा में पास करना है. I have to show to that interviewing officer that I am not getting bowed down because he is reacting or talking to me in a rude manner. ये वो आपकी स्ट्रेंथ देखने के लिए ही ये टेस्ट होता है अगर कभी भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके साथ ऐसा बात करे. Also, there may be some personal और family issues जो आप बोलने के वक्त रोने लगे या फिर आप अपसेट हो गए, तो वो भी नहीं करना है. Yes, it is very humanly कि ऐसा कुछ आपके लाइफ में हुआ है जिसके लिए आप दुखी हो. So, okay, showing emotions is okay, but do not be very emotional जिससे आपका इंटरव्यू खराब हो जाए या आप रोने बैठ जाओ. So, try, okay, you need to control yourself and get back to your normalcy as soon as possible, right? The next thing that you should not do is going and giving extra buttering to your group mates in your room. ऐसे बहुत कैंडिडेट सोचते हैं कि ग्रुप मेंबर्स को पटा लेंगे ताकि कमांड टास्क के वक्त मुझे बुलाया जाए, वो लोग मुझे बुलाए सबऑर्डिनेट्स के लिए हिसाब से, ताकि जीटीओ को लगे कि हाँ ये बंदा जो है स्ट्रांग है इसीलिए सब उसको बुला रहे हैं ना. अब देखो जीटीओ जो है ना, उनका ये जॉब है
ये हर रोज वो करते हैं, तो उनको पता है किसने सेटिंग किया है पीछे, किसने नहीं किया है, कौन सा जेन्युइन है, कौन सा जेन्युइन नहीं है. So instead of buttoning your group mates and pleading them and begging them to call you in the command task, what you need to do is try to bond with them in a friendly manner. उनके साथ दोस्ती करो, उनके साथ मिलो झुलो, उनके साथ बातचीत करो, उनके साथ एंजॉय करो, प्ले स्पोर्ट्स विद देम, टॉक टू देम इन अ फ्रेंडली वे. और इससे क्या होगा, ग्रुप वैसे इंप्रेस हो जाएगी. प्लस आपके परफॉर्मेंस में भी ग्रुप इंप्रेस हो सकती है, राइट. सो इफ द ग्रुप सीज यू एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला इंसान, a knowledgeable person who is very supportive, who is very kind, who is very caring, who looks and gives chances to other group members, तो ऑटोमेटिकली वो आपको चूज करेंगे, ऑटोमेटिकली वो आपके साथ टास्क परफॉर्म करना चाहेंगे. इसके लिए आपको एक्स्ट्रा बटरिंग करने की या उनके साथ सेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज डू नॉट लुक लेजी एट ऑल. तो चाहे वो कोई भी एसएसबी टास्क आप क्यों ना कर रहे हो, डू नॉट वॉक, टॉक और सिट इन अ वेरी लेजी मैनर, जिससे लगे कि आप बहुत टायर्ड हो चुके हो. यू हैव टू ऑलवेज शो योर एंथुसियाज्म, योर लाइवलीनेस, योर एक्साइटमेंट फॉर ऑल टास्क. हर टास्क को आपको एक्टिवली करना है. हो सकता है कि आप फिजिकली वो या मेंटली टायर्ड हो चुके हो, पर वो उसको शो नहीं करना है. सो इन ऑल द टास्क प्लीज पार्टिसिपेट इन एन एक्टिव एंड लाइवली मैनर. The next thing is getting too friendly with the interviewing officer. Now कभी-कभी ऐसा होता है, I'm not saying कि आप खुद से friendly हो जाओगे interviewing officer के साथ. कभी-कभी क्या होता है कि पर्सनल इंटरव्यू में the interviewing officer as another interviewing tactic आपके साथ कुछ ज्यादा friendly हो जाते हैं. Okay, and at that time आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये interviewing officer कितना मस्त है, इसके साथ कुछ भी बात किया जा सकता है. But be absolutely careful when this is happening. बिकॉज जब आप किसी के साथ ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हो, यू टेंड टू ब्लैबर द थिंग्स आउट विच यू आर नॉट प्लानिंग टू टेल हिम, राइट. सो अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना है, खुद को कंट्रोल में रखना है. ठीक है, सारी चीजें नहीं बताना इंटरव्यूइंग ऑफिसर को, जितना आपने सोच के आया है वही बताना है, क्योंकि उनका टैक्टिक है. हमेशा याद रखना, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट फ्रेंडली विथ यू, वो आपकी एज की भी नहीं है और वो आपको जानता भी नहीं है. सो ट्राई टू ऑलवेज think about what you are saying before you are saying. Do not get too friendly with the IO, no matter how much friendly he is becoming. Remember, they are trained to do that. It's their interviewing tactic. Okay. Last but not the least is you are there to be a part of the prestigious institution of defense. आप अपनी country को protect करने वाले हो. So do not criticize about anything, about the government, about the defense, about army, navy, air force to anyone. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो चाहे आपके रूममेट हो या आपके फ्रेंड हो या आपके वहां पे ऑफिसर हो, किसी को भी डिफेंस के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं करना है. ओके, प्लीज डू नॉट डू दिस बिकॉज देन दैट कैन बी अ क्वेश्चन मार्क. तो जैसे मैंने कहा था सेशन के बिगिनिंग में ही कि सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि क्या नहीं करना है एसएसबी में, एज अपोज टू जो हमेशा हम लोग सुनते आते हैं कि क्या करना है करना है करना है. तो यहाँ पे ये सब चीजें नहीं करनी है. So take care when you're going to your upcoming SSB that you're not doing the things which we have already discussed in this session. ऐसे अगर आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी या टिप्स जाननी है आपके अपकमिंग एसएसबी के बारे में, what you can do is get yourself enrolled into our SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स. इसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से. उसके बाद आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो. हर रोज हमारे लाइव क्लासेस चलती रहती है इस कोर्स में. इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट्स, स्टडी मटेरियल्स और प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन. फॉर योर अपकमिंग डिफेंस एग्जामिनेशन, अगर आप कुछ रिटन डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कोर्सेज अवेलेबल है हमारे ऐप के थ्रू, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो. और जब आप एनरोल करोगे यूज द कोड warrior10 जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिले ऑन ऑल द कोर्सेज. सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. आई विल सी यू नेक्स्ट विद समथिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल लाइक टुडेज सेशन. टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड ऑलवेज ट्यून्ड विद अस. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.